हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.2 के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से एक हमारे पास क्वेश्चन है, इफ गिवन मैट्रिक्स ए 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू 0 and an identity matrix also given of order 2 means 1 0 0 1, and we have to show that I plus a is equal to I minus a and matrix cos alpha minus sin alpha cos alpha, ये अपने को कंडीशन शो करनी है। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल we take LHS. Yes, in LHS, I plus A means this is I plus, suppose that this is A. I means 1 0 0 1 and A means 0 minus tan alpha by 2 0। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे सिंपल सा, सो वी गेट 1 माइनस tan alpha by 2 1। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ I plus A. It is our LHS. Now in RHS, first of all we calculate this portion like I minus A, it will be I minus A। हम डायरेक्टली इसको इसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमने I प्लस A को सोल्व किया ऐसे हम लोग I माइनस A को सोल्व करेंगे। देन वी हैव 1, अब ये साइन चेंज हो जाएंगे ओनली, हो जाएगा tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1, it is I minus A। okay then, now for RHS, now I minus A multiplied by cos alpha minus sin alpha एंड cos alpha। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें हम लोग। ओके, यहां स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I माइनस A? दिस वन 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1 and another matrix cos alpha minus sin alpha and cos alpha। Can we multiply them? According to the rule of multiplication, first row of first matrix should be multiplied first column of second matrix, means ये पूरा जो है रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, लाइक cos alpha and plus tan alpha by 2 sin alpha। Similarly, first row multiplied by second column like minus sin alpha plus tan alpha by 2 cos alpha। Yes, for second row minus tan alpha by 2 cos alpha plus sin alpha, and these are sin alpha into tan alpha by 2 plus cos alpha। यहां तक इजीली सोल्व कर लेते हैं, इसमें यहां तक कोई डाउट भी नहीं होगा आप लोगों को। डाउट तो क्रिएट होता है इसके बाद, आफ्टर दैट हम लोग क्या सोल्व करें इसको। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो है कंडीशंस दे रखी हैं, लेकिन अपन सिंपल सा टॉपिक लेते हैं। देखो सिंपल सा कंडीशन लेते हैं,
अब इसके बाद हमारे को आगे कोई प्रोसेस करने के लिए जो है कोई की नहीं मिल रही, लेकिन हम लोग ये जानते हैं वी कैन कन्वर्ट tan टर्म्स इनटू साइन एंड कॉस टर्म्स। सो इजी वे हमने इसको चेंज कर दिया, किस किस को, tan अल्फा बाई 2, जहां जहां पर भी tan अल्फा बाई 2 है इसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया इनटू साइन अपॉन कॉस। यस, तब हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं लाइक दिस, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 into sin alpha, and here minus sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 into cos alpha. Similarly here minus sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 into cos alpha plus sin alpha, and here sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 plus cos alpha. Is that clear? Now can we take LCM? Can we take LCM? अब हम लोग इसका LCM ले लेंगे। तो LCM जब हम लोग लेंगे जब इसका हम लोग LCM लेंगे तो here cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 upon cos alpha by 2. Yes, here minus sin alpha cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 cos alpha. Similarly upon cos alpha by 2. Similarly here minus sin alpha by 2 cos alpha plus sin alpha cos alpha by 2 upon cos alpha by 2. And last one is, it is sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 upon cos alpha by 2. Is that clear? अब हम लोग क्या करेंगे, यहां इसको इट इज एन आइडेंटिटी ऑफ cos a cos b plus sin a sin b which is equal to cos a minus b means cos alpha minus alpha by 2, cos वो हो जाएगा बस cos alpha by 2. here माइनस कॉमन अगर ले लेंगे हम लोग तो sin a sin b minus cos a cos b वाला कंडीशन बन जाएगी which is equal to sin a minus b. तो यहां पर बन जाएगा sin alpha by 2 upon cos alpha by 2, यहां बन जाएगा sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 और इधर बन जाएगा cos alpha by 2 upon cos alpha by 2. so it is cos alpha by 2 upon cos alpha by 2 means 1. it is minus tan alpha by 2, it is tan alpha by 2 and it is again 1 which is equal to our LHS. is that clear? is that clear? तो हम लोग इसको थोड़ा एक स्टेप और है वो आपके लिए मैंने ड्रॉप कर दी है कि आप इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी यूज लेंगे तो हमारे पास LHS प्रूफ हो जाएगा. यहां सबसे जो बात थी समझने की वो कंडीशन केवल यहां थी. आपके पास अदर रेफरेंस बुक्स में भी ऐसे कंडीशन में सॉल्व नहीं कर रखा है. यहां हमारे को जो tan अल्फा बाई 2 को इसमें ब्रेक नहीं कर रखा है. यहां इजीनेस यही हो जाती है कि हमारे पास इजी से सोल्व हो जाता है और ये लर्न भी रहता है हमारे. अदर बुक्स में जो है कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस दे रखी हैं वो हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा टिपिकलनेस क्रिएट करती है, माइंड में लर्न भी नहीं रह पाता. अब ये इजीली आपको आई थिंक लर्न रह जाएगा. क्लियर? ओके. वन ऑफ द डाउटफुल क्वेश्चंस गिवन क्वेश्चन इज fx is a matrix, given matrix which is cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1. it means it is order 3 matrix. order 3 matrix means 3 by 3 matrix means इसकी रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी
3 है। अब क्वेश्चन क्या है, शो दैट fx into fy is equal to fx plus y। क्वेश्चन हमारे पास ये हमारे को शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल fx तो हमारे पास गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड fy। Similarly, we can write fy as cos y minus sin y 0, sin y cos y 0, 0 0 1। Is that clear? Given condition fx, इसकी हेल्प से हमने fy कैलकुलेट कर लिया, fy विच इज दिस। अब हमारा करना क्या है, वी सॉल्व फर्स्ट LHS fx इंटू fy। चलो इनको मल्टीप्लाई तो करना है, क्या प्रोडक्ट ऑफ fx इंटू fy, देखते क्या होगा। यस, इन LHS fx इंटू fy क्या होगा भाई, देखिए इट इज fx, इट इज fy। चलो देखते हैं, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। Is that clear? Yes. Here cos y sin y 0, sin y cos y 0, 0 0 1। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी राइटिंग मोतियों जैसी है, सारे लेटर्स एक जैसे दिखते हैं। यस, देखते मल्टीप्लाई करें हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, like this, cos this one first row and this one first column. Remember that? Yes, cos x multiplied by cos y. Okay. Similarly, minus sin x multiplied by sin y, और ये 0 हो जाएगा। 0 को मैं लिखता नहीं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो प्लस 0 करके। नेक्स्ट, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, हियर माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y एंड 0। और जब इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, इट विल बी 0, बिकॉज cos x मल्टीप्लाइड बाय 0, sin x also multiplied by 0 and 0 multiplied by 1, so it will be 0। Similarly we multiplied second row by all columns of second matrix, like this, sin x cos y, sin x cos y plus cos x sin y plus 0। Second one is minus sin x sin y plus cos x cos y plus 0, it will be also 0। चलो अब ये मल्टीप्लाई करें तो ये 0, ये भी 0 और it will be 1। अब भाई देखो, ये अपन इसको देखते हैं, अगर मैं इस 0 को यहां से एलिमिनेट कर दूं, तो इस 0 का यहां पे जो है इतना बड़ा रोल नहीं है, ये मैंने 0 हटा दिया यहां से, कोई रोल नहीं था इतना। अब देखो, इट इज एन आइडेंटिटी एंड इट इज ऑल्सो आइडेंटिटी, ये चारों आइडेंटिटी बन गई हमारे पास।
इट इज cos A cos B minus sin A sin B which is equal to cos A plus B। यहां पे क्या है, A और B की जगह XY है। सो कैन वी यूज आइडेंटिटी ऑफ cos? इट विल बी cos X plus Y। Here if we take common minus, if we take common, then we have minus identity of sin X plus Y and last will be 0. Same here, it is identity of sin X plus Y, sin X plus Y, and it is cos A cos B minus sin A sin B, it is sin X plus Y, लास्ट वन will 0 और ये इज अपने पास आ गया 0 0 1। सो दिस इज, अब देखो अगर मैं इसको देखता हूं, इसको और इसको कंपेयर करो, देखो इफ वी कंपेयर दिस टू दिस, यहां हमारे पास x है तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, fx। यहां हमारे पास x प्लस y है तो फिर इस पूरे को क्या बोलेंगे, fx प्लस y। इट इज fx प्लस y which is RHS। so we can show fx into fy is equal to fx plus y। क्लियर, सिंपल सा जो है हमारे पास एक क्वेश्चन था, ये 3.2 13th क्वेश्चन हमारे पास है, आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ऐसा हो जाता है क्लास में जो है हम लोग मिस कर जाते हैं लेक्चर, तो वहां ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए कि हम जब कभी भी चाहें पवन सर की जो है क्लास, मैथ्स क्लास में पहुंचे और इसको वापस रिवाइज कर दिया। ओके देन।